Start. Yes, very good morning, boys and girls. Good morning, sir. I said very good morning, boys and girls. Good morning, sir. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. Secretarial Practice. I welcome you to yet another session of 11th Standard Secretarial Practice. 11th Standard Secretarial Practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. In today's session, we'll be discussing about features of joint stock company. So far, we have discussed what is the meaning of a joint stock company. In yesterday's definition of section 2 subsection 20, I have explained you why it is so important to understand the definition as per the law. है ना? क्योंकि पहला वाला definition क्या कहता था? Joint stock company is voluntary association of persons who have come together for a lawful purpose. लेकिन अगर वैसे definition के हिसाब से अगर आपने कंपनी बना ली, it is not company in the eyes of the law. In the eyes of the law, a company is a company which is registered under the Companies Act 2013 or any other previous company law. ये कहां पर दिया गया है डेफिनेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यस और नो? हाँ या ना? सो हमने अब तक क्या देखा, क्या सीखा? व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड एंड व्हाट डिड वी लर्न? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब, गौरी लक्ष्य दे, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड or registered under the Companies Act 2013, the Companies Act 2013 or under any previous company law, or under any previous company law, or under any previous company law. The entire share capital of the company is divided into small part, and each a small part is called as share. Each a small part is called as share. हूं करके इसे देखो मत, मेरे पीछे रिपीट करो. The entire share capital of the company is divided into small part, and each a small part is called as share. The person who buys the share of the company is called as share. Who are the owners of the company? Share. Who are the owners of the company? Share. The entire share capital of the company is divided into small part. Each a small part is called as share. The person who owns the share is called as shareholder. Shareholder is the owner of the company. The elected representatives of the member are called as directors. The elected representatives of the member that are called a director collectively form a committee which is called as board of directors, and the board of directors run the day-to-day management of the company. In case of a joint stock company, ownership is different and management is different. Ownership lies with the shareholders. Management lies with the board of directors. Who are board of directors? Consist of directors who are elected representatives of the members. ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके फीचर समझना बहुत से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का है. 11th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का बचा हुआ सारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सिलेबस इज बेस्ड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी. So understanding this form of business organization is very important. Sole trading concern, partnership firm, बाकी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझना आसान भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये अलग एक्ट के अंतर्गत चलता है और उस एक्ट के अंदर 470 सेक्शन है. सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोसीजर वाइज इसमें ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं और समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसीलिए सभी फीचर्स के ऊपर ध्यान दो, बिल्कुल भी नीचे नीचे मत देखो. सिट स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव टू ऑल द फीचर्स, क्योंकि अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है. और एक बार दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गया ना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी क्या, फिर उसके बाद आने वाले दिनों में मैं जो चैप्टर सिखाऊंगा वो सीखने के लिए इंटरेस्ट भी आएगा और इजी भी जाएगा. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पॉइंट. अब फीचर्स में अपने को 12 पॉइंट देखने. कितने पॉइंट देखने हैं? 12. फर्स्ट पॉइंट कहता है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. सेकंड, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. थर्ड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी. आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सिल, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, transferability of shares, number of members, capital and government control. Start with the first point.
voluntary association. Did we learn this point in the definition itself? A joint stock company is a voluntary association of persons. यानी जो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो वॉलेंट्री साथ में आकर कंपनी चलाने का जो है निर्णय लेते हैं. क्या हम किसी को शेयर जबरदस्ती बेच रहे हैं? नहीं. जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है वो वॉलेंट्री खुद के इच्छा के अनुसार खरीद रहा है. हाँ या ना? So it is a voluntary association. It is a voluntary association. The shareholder who buys the shares of the company are voluntary buying the shares of the company. There is no compulsion on anybody to come and buy the shares of the company. Those who voluntarily wants to come into the business will buy the shares of the company. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक voluntary association. A joint stock company is a voluntary association of persons. Membership of the company is open to all. कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. तू नहीं खरीद सकता, तू नहीं खरीद सकता, ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता, ऐसा फंडा यहाँ पे नहीं है. अब मान लो कंपनी जो है वो वरद की है और सुबह सुबह पिल्लू के साथ उसकी नोकझोंक हो गई, नहीं नहीं अब तेरी मेरी कट्टी हो गई, तू मेरे कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बन सकता, ऐसे बोल सकते क्या? नहीं. कंपनी पिल्लू की है, वो बोल रहा वरद आपला झाला सगळा सेटलमेंट 100 रुपयावर, अब कुछ आगे का नको, तू मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता. तो बात ऐसी है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी व्यक्ति जो है इर्रिस्पेक्टिव आपको वो पसंद है नहीं पसंद है, चाहे वो आपका दुश्मन है, कुछ भी है, आप उसको मना नहीं कर सकते. जो व्यक्ति वॉलंटरी आपके कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अ पर्सन एट हिज ओन wish can become or leave the membership of the company subject to all the provisions of the articles of association of the company. Articles of association मतलब rules and bylaw. हमारा देश किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से. Our country is run as per the Constitution of India. So can I say Constitution provides the power to the country? Yes. कि देश कैसा चलना चाहिए, देश में सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, ठीक उसी हिसाब से कंपनी जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट पे चलता है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आगे मैं जब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा इसके अंदर तब डिटेल में अपन बात करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना आइडिया लो कि कंपनी को पावर्स मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से. किससे पावर मिलती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से. भारत को पावर किससे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिया को मिलती है पावर कॉन्स्टिट्यूशन से, कंपनी को पावर मिलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स दिए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में क्या है? कानून है, लॉ है, जिसके मुताबिक, जिसके रूल्स के मुताबिक हमारा देश चलता है. और जो कानून है ये किसके आधार पे है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है. कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लॉ बनता है और उस लॉ के मुताबिक देश चलता है. कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कंपनीज एक्ट बनाया गया है और उस कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी चलती है. हाँ या ना? वैसे ही कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और रूल्स और बाय लॉ किस नियमों से वो चलाना चाहिए ऐसा कौन कहता है? हमारे देश के लॉ या कानून. वैसे ही कंपनी का रूल और लॉ बुक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आपको बताता है कि कंपनी के पावर्स एमओए में है, उन पावर्स को यूज करके कंपनी को चलाते कैसे है ये कौन बोलता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो यहां पर बोला है ट्रांसफर. कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और अपने शेयर बेच सकता है. अगर इसने श्रेयस ने अगर मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद कर बाद में वो निरंजन को बेचना चाहता है, बरोबर? निरंजन ना, तो श्रेयस मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदता है और खरीद कर बाद में निरंजन को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है. इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. वो खुद की मर्जी से मेरे शेयर खरीदा और खुद की मर्जी से निरंजन को बेच रहा है. आई कैन नॉट फोर्स एज अ कंपनी कि तुम्हें तुम्हारे शेयर्स उसको बेचने पड़ेंगे या फिर तुम मेरे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते. तुम मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं सकते क्योंकि तुम गंगूबाई के साथ सेट हो, ऐसा मैं बोल नहीं सकता, है ना? और निरंजन के साथ अपना जमता नहीं, 36 का आंकड़ा है, तो मैं राहुल गांधी है, वो मोदी है, तो अपने को नहीं जमने वाला, तुम उसको भी शेयर्स नहीं बेच सकते. सो दैट ऑल्सो इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. इसीलिए शेयर्स जो है शेयर्स वॉलेंट्री कोई भी खरीद सकता है, वॉलेंट्री किसी और को बेच भी सकता है, उसकी मर्जी पे सब चलेगा. मेरी मर्जी, है ना? मेरी मर्जी. तो मर्जी जो है वो बहुत बड़ी बात है. मर्जी जो है वो बहुत बड़ी बात है. अब श्रेयस की मर्जी है, उसको शेयर्स निरंजन को बेचने हैं
मेरे शेयर्स खरीदने हैं नहीं खरीदने हैं, क्या करना है वो उसकी मर्जी है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, मेरी मर्जी चलेगी, क्योंकि क्या है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस। लेकिन कितनी भी मर्जी रही तो कंपनी के जब आपको शेयर्स खरीदने हैं उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के शेयर्स आपको किसी और को बेचना है तो उसके ट्रांसफर की प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए क्या प्रोसीजर है, कंपनी के शेयर्स किसी और को देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये सारे रूल्स और बायलॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए। कहां दिए गए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को पावर कहां से मिलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो शब्द बोल रहा हूं बार बार याद रखो, आगे बहुत बार सुनना है अपने को। कंपनी को पावर्स कहां से मिलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमारे देश को पावर्स कहां से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश किसके मुताबिक चलता है, लॉ के मुताबिक चलता है। ठीक उसी हिसाब से कंपनी को पावर्स मिलते हैं एमओए से, लेकिन कंपनी चलता है किस नियमों के आधार पे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। जैसे मैंने कहा पहला डेफिनेशन क्या था, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस where the people have come together for some lawful purpose। क्या इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई कंपनी हुई क्या, नहीं। कल अपन ने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में अपन ने क्लियर समझा कि इन दोनों ने जो कंपनी बनाई थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। रजिस्टर्ड थी क्या, नहीं। जो रजिस्टर्ड नहीं वो कंपनी नहीं, साफ क्लियर। जो रजिस्टर्ड है वही कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं वो कंपनी नहीं। क्योंकि कंपनी जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, कौन सा एक्ट के मुताबिक चलती है, कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन क्या कहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेटेड। स्ट्रेस किस पे है, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका बोलने का मतलब क्या है, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन से पहला पॉइंट देख लिया अपन ने, हाय आना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड। कल मैंने बोला था टेक्स्ट बुक सामने रखने का, पेंसिल लेने का, जहां जहां तुमको वर्ड लगा लिख के रखने का, बार बार लिख के रखो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड। इट्स इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या, इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन। यानी कि अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है तो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आज के डेट में निरंजन और श्रेयस मिलकर अगर कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, निरंजन और श्रेयस मिलकर कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए कंपलसरी क्या है, रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। वॉलंटरी दोनों साथ में आए बोले कि अपन कंपनी बनाते हैं, लेकिन वॉलंटरी साथ में आके कंपनी बनती है क्या, नहीं बनती है। लेकिन साथ साथ उसका क्या होना जरूरी है, इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसका एक प्रोसीजर दिया गया है, उसका एक प्रोसीजर दिया गया है जो हर कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है। बिल्लू लक्ष्य थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है, जो रजिस्टर होती है, उसका एक प्रोसीजर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो अगला चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 3। उसमें अपन देखेंगे कि कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर क्या है कि कंपनी को बनाने के लिए। जैसे श्रेयस और निरंजन मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी बनाने के लिए उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, यानी उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और रजिस्टर्ड होने के लिए क्या प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं, ये अगला चैप्टर अपने को समझाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि अगर ये दोनों मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होना कंपलसरी है, कंपनी जो है रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 हो या 2013 की पहले कोई एक्ट हो। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड। वॉलेंट्री बोला है क्या, नहीं, इट इज
कंपलसरी, यानी अगर तुमको कंपनी बनाना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन किया तो ही कंपनी बनेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कंपनी नहीं बनेगा. एंड एसोसिएशन ऑब्टेन्स द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट. यानी कोई भी कंपनी को, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी का दर्जा तभी मिलेगा जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करोगे. रजिस्ट्रेशन का अगला जो प्रोसीजर है उसमें समझ में आएगा आपको. दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं. रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अपने को फुलफिल करना पड़ता है. वो रजिस्ट्रेशन का फुलफिल करने के बाद जो कंपनी, जो आरओसी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वो आपको पहले डॉक्यूमेंट देते हैं जिसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बाद आपको ऑफिस का एड्रेस दिखाना पड़ता है. फिर आपको दूसरा सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. और वो दोनों डॉक्यूमेंट आने के बाद फिर कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है. उसके बाद सत्यनारायण, उसके बाद सब बिजनेस. हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था, शॉप पैक निकालो, सत्यनारायण की पूजा करो, प्रसाद दो, धंधा चालू. लेकिन अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रहे हो तो ऐसा नहीं बनेगा. उसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है. आपको एमओए बनाना पड़ेगा, एओए लेना पड़ेगा, सीए का डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा. इतना सब डॉक्यूमेंट पहले तो देना पड़ेगा. किसको? रजिस्टर ऑफ कंपनीज को. रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा. सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा. क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा कंपनी का, उसका वेरिफिकेशन होता है. कंपनी के आरओसी के जो लोग आते हैं आपके कंपनी के एड्रेस को वेरीफाई करते हैं कि कोई डमी कंपनी तो नहीं है. एक बार वो वेरिफिकेशन हो गया और एक दो डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं. फिर उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आएगा उसके बाद सत्यनारायण की पूजा और उसके बाद बिजनेस. बहुत खतरनाक दिख रहा है ना? खतरनाक ही है क्योंकि दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल ओनली फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. इसीलिए छोटा मोटा पान टपरी वाला प्राइवेट लिमिटेड बनाता है क्या? नहीं. वो डॉक्यूमेंट का खर्चा करने में उसके तो पूरा चुन्ना कत्ता 320 360 सब आ जाता है ना. तो वो क्यों इतनी मगजमारी करे? एन एसोसिएशन ऑब्टेन्स द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट. कोई भी कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी का दर्जा तभी मिलेगा व्हेन इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. यस और नो? हाँ या ना? पॉइंट नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है when the business can sue its own name. sue का मतलब गलत मत लेना, पहले बोल रहा हूं. sue का मतलब मुझे आई नहीं है तो गलत मत लेना, पहले बोल रहा हूं. तो अभी साफ क्लियर कर रहा हूं, है ना. when the company can sue in its own name and when the company can be sued in its own name. sue है ना? क्या बोल रहा है? सक्षम, क्या नाम है? सक्षम. नाइस, आई लाइक इट. ध्यान. बात ऐसा है, when the company can be sued in its own name. क्या बोला? sue. sue बोलो. sue. सुमंत करना. sue बोलो. sue. सू नहीं रे, sue. सू छवे नहीं, सू नहीं चालू है पे. स्यू. स्यू. शू नहीं रे, स्यू. शू नहीं, स्यू. 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 स्यू नहीं रे, स्यू. हाँ खरवजन. स्यू. हाँ स्यू नहीं रे. स्यू. 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 हाँ पिल्लू. हाँ बोलना. स्यू. हाँ पाटिल. डुब्बेवार. स्यू नहीं रे, स्यू. when the company cannot sue in its own name. बोल स्यू. हाँ निळे. स्यू. हाँ
स्यू नहीं रे, स्यू। हाँ पांडे बोल। हाँ स्यू बोल। बोल ना। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है व्हेन द कंपनी कैन स्यू इन इट्स ओन नेम और कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, इट्स कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। अंडरस्टैंड क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हमने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझा, अभी थोड़ा टेक्निकल है ना, थोड़ा टेक्निकल है। थोड़े दिमाग की खिड़की खोलो, अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे तैरने दो और तुम्हारे दिमाग की गहराई तक जाने दो, सुनने की कोशिश करो। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता हूं जिसके बारे में अब तुमको अच्छा खासा पता है, जिसका नाम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, where there is a single owner, controller and manager of the business. Such kind of business organization is called as sole trading concern. Yes or no? Yes or no? जहां पर एक सिंगल ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर होता है उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं, और ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आसपास जो आपको किराना दुकान दिखते हैं तो आप में देखते हो कि एक मालिक होता है, वो गल्ले पे बैठता है, वो मालिक होता है, वो कंट्रोलर होता है, वो मैनेजर होता है, और उसके मुताबिक वो किराना दुकान चलती है। तो किराना दुकान क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ अंडरस्टैंड हाउ इज द लाइबिलिटी इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न की आइडेंटिटी सोल ट्रेडर से अलग नहीं है। क्या नहीं है? अलग नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक ही है। यानी कल को किराना दुकान अगर डूब गया, उसमें नुकसान हो गया, तो वो जो मालिक उस गल्ले पे बैठा है उसकी नुकसान की भरपाई उसको करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के नाते अगर वो पैसे नहीं दे पाता तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। लेकिन यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है, तब आगे जाके हम देखेंगे कि मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब जितना शेयर उतने लाइबिलिटी, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या नाम है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बात ऐसी है, जब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता तो असेट आपको आपके पर्सनल नाम पे लेने पड़ते हैं, प्लस लाइबिलिटी भी आपके पर्सनल नाम में होगी। यानी सोल ट्रेडर के पर्सनल, मान लो कल किराना दुकान की कोई बिल्डिंग खरीदनी है, किराना दुकान की कोई बिल्डिंग खरीदनी है, पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर नाम है दुकान का, बरोबर, मेरे घर के पास है। तो कल को नई दुकान बनाए हैं और नई दुकान खरीद रहे किराना के लिए, तो किराना के लिए जो नई दुकान खरीदी जाएगी ना, वो पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर के नाम से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ समझ रहा है? कुछ समझ रहा है क्या? अब कोई दुकान है, राइट, कोई नई दुकान है, ठीक है, कोई नई दुकान है, यहां पर नई दुकानें बने हैं, उस दुकान की कीमत 20 लाख रुपए है। कितने हैं? 20 लाख रुपए। अब वो पद्मिनी के जो ओनर है वो वट्टमवार है। कौन है? वट्टमवार, बरोबर। अब वो वट्टमवार जो है वो 20 लाख रुपए की किराना खरीदने वाला है। कितने की खरीदने वाला है? 20 लाख रुपए की। अब जो 20 लाख की दुकान खरीदी जाएगी तो वो ओनर के नाम पे लिख के देनी पड़ेगी ना, इट विल बी ओन्ड इन समवन्स नेम, यस और नो। तो जब वो 20 लाख की किराना खरीदेगा तो जो ओनर होगा वो किराना का, उसके ऊपर नाम जो होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो रजिस्ट्री होगी वो वट्टमवार के नाम पे होगी, पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर के नाम पे नहीं होगी। मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी चीजें खरीदी जाएगी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, बिलिंग मशीन, टेबल, फर्नीचर, शॉप, जो कुछ भी चीज खरीदी जाएगी वो सोल ट्रेडर के पर्सनल नाम में खरीदी जाएगी। किसके नाम पे? सोल ट्रेडर के पर्सनल नाम में। नॉट इन द नेम ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इट विल बी इन द नेम ऑफ, इट विल बी इन द नेम ऑफ सोल ट्रेडर, इट विल बी इन द नेम ऑफ सोल ट्रेडर। कल को लोन लेते हैं हम, कल को हम उसी यहाँ पे जो नया दुकान बनाया उसके लिए 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है बैंक से। कितने लाख का? 10 लाख का। जो लोन भी बैंक देगी ना, वो लोन
पद्मिनी किराना जनरल स्टोर के नाम पे नहीं रहेगा, वो लोन भी रहेगा वट्टमवार के पर्सनल नाम में। समझ में आ रही है? जो दुकान खरीदी गई वो किसके नाम पे है? वट्टमवार के नाम पे। जो लोन लिया गया वो किसके नाम पे? वट्टमवार के नाम पे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी पद्मिनी किराना जनरल स्टोर के नाम पे नहीं है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक ही है, दे बोथ आर वन। इसीलिए सब कुछ, सारे असेट, सारे लाइबिलिटी, सारे लाइबिलिटी सोल ट्रेडर के नाम पे होते हैं। जो भी एसेट खरीदा जाएगा किसके नाम पे होगा? सोल ट्रेडर के नाम पे। दुकान में जितने भी लाइबिलिटी होगी वो किसके नाम पे होंगे? सोल ट्रेडर के। इसीलिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि सब कुछ उसके नाम पे है, सब कुछ उसके नाम पे है। और मैंने यहां पे एक सेंटेंस कहा, स्यू और टू बी स्यूड। स्यू और टू बी स्यूड समझने की कोशिश करो। स्यू और टू बी स्यूड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पे केस करते हैं तो इसे कहते हैं हम टू स्यू, है ना? टू स्यू, टू स्यू। मान लो रोहित जो है, अपना रोहित ने डुब्बेवार को किडनैप कर लिया। रोहित ने डुब्बेवार को किडनैप कर लिया। अब रोहित ने डुब्बेवार को किडनैप करने के बाद डुब्बेवार के पेरेंट्स रोहित पर केस कर रहे हैं। तो इसका कानूनी तौर पे इसको कैसे बोला जाएगा? रोहित इज स्यूड बाय डुब्बेवार्स पेरेंट्स। आर गेट माय पॉइंट? केस करने का मतलब होता है किसी को स्यू करना। किसी के ऊपर जब हम केस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्यू करना। क्या बोलते हैं उसे हम? स्यू करना। तो डुब्बेवार के पेरेंट्स ने रोहित के ऊपर स्यू किया है, दैट रोहित हैज किडनैप्ड आवर चाइल्ड। स्यू और टू बी स्यूड, स्यू और टू बी स्यूड। जब कोई व्यक्ति हम पर केस करता है दैट इज कॉल्ड एज स्यूड। और टू बी स्यूड, डुब्बेवार ने रोहित को किडनैप किया है। समझना थोड़ा सा, हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मान लो कि डुब्बेवार ने रोहित को किडनैप किया है। अब रोहित डुब्बेवार के पेरेंट्स पे केस कर रहा है, टू बी स्यूड। इसी हिसाब से स्यूड और टू बी स्यूड का मतलब है, इसी हिसाब से स्यूड और टू बी स्यूड का मतलब है। समझने की कोशिश करो। पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर, एग्जाम्पल ध्यान दो। पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। सोल ट्रेडिंग का मतलब समझाऊंगा, सोल ट्रेडिंग का स्टेटस समझाऊंगा, सोल ट्रेडिंग का एग्जाम्पल समझेगा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सेपरेट लीगल एंटिटी म्हणजे नेमकं काय। तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मुझे सिर्फ इतना ही पॉइंट लेके आज रुकना है, क्योंकि पॉइंट समझाने के लिए टाइम, इसलिए मैं बोला लेता हूं 3-3 पॉइंट के पीछे एक लेक्चर जाने वाला है। ध्यान दो। पद्मिनी किराना जनरल स्टोर ने 2 ट्रांजैक्शन किए। एक ट्रांजैक्शन क्या किया? जगह खरीदी दुकान की। कितने में खरीदी? 20 लाख के। वो किसके नाम पे है? वट्टमवार के नाम पे। 10 लाख रुपए का बैंक का लोन लिया, किसके नाम पे? वट्टमवार के नाम पे। लेकिन दुकान किसके लिए ली? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। लोन किसके लिए लिया? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। वो उसके नाम पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। फिर भी किसके नाम पे आ रहा है? वट्टमवार के नाम पे। दुकान होने के बावजूद दुकान के एसेट और दुकान के लायबिलिटी सोल ट्रेडर के पर्सनल नाम में है, क्योंकि सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का अस्तित्व एक है। वो दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। अब बात समझने की कोशिश करो। लेट्स फॉर एग्जांपल से उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक बेची 25 रुपए वाली। कोई 25 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक जो है, 25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक उन्होंने सक्षम को बेची। दे सोल्ड अ कोल्ड ड्रिंक ऑफ 25 रुपीज टू सक्षम। लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट थी 31 जनवरी 2022। एक्सपायरी डेट क्या थी? 31 जनवरी 2022। आज कौन सा मंथ चल रहा है? 12 अगस्त। 31 जनवरी 2022 को जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, उसको 12 अगस्त 2022 को पद्मिनी किराना जनरल स्टोर से बेचा जा रहा है। अब इतनी अकल तो तुम लोग को होगी, क्या एक्सपायर्ड चीजें बेचना जुर्म है या नहीं है? हाँ या ना? क्या आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच सकते हो? हाँ या ना? नहीं। यू शुड नॉट सेल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बिकॉज दे आर इंजूरियस टू हेल्थ। क्योंकि वो एक बार एक्सपायर हो गया, उसका कंटेंट लाइफ एक्सपायर हो गई, तो वो बॉडी पे गलत इंपैक्ट कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक ले ली,
सक्षम ने कोल्ड ड्रिंक तो पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसने देखा नहीं, कितने लोग देखते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है क्या नहीं, खाने से पहले जो खाते हो वो पीते हो पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लिया करो, फिर खाया करो, बस टूटने पे मत पड़ो, है ना, कब खोलूं कब पीऊं। अब वो वैसे अपना सक्षम उसने कोल्ड ड्रिंक निकाला पी लिया, और पीने के बाद दूसरे दिन उसको हो गया फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग वगैरह होने पे डॉक्टर ने बताया तुमने कुछ कोल्ड ड्रिंक विल्ड ड्रिंक पिया उसके से तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया। तो अचानक से वो जो डब्बा था, बोतल थी, वो घर पे पड़ी थी, इसके पेरेंट्स ने वो बोतल देख ली, उनको समझ में आया कि एक्सपायरी डेट थी 31 जनवरी 2022, आज डेट है 12 अगस्त 2022, यानी पद्मिनी किराना जनरल स्टोर से एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचा गया, जो कि एक कानूनन जुर्म है, जिसके वजह से उनके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब इसके पेरेंट्स पद्मिनी किराना जनरल स्टोर पे कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। दे वांट टू स्यू पद्मिनी किराना जनरल स्टोर फॉर सेलिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। क्या वो कर सकते हैं? यस। क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है क्या? यस। हाँ या ना? तेजस, यस और नो? पाटिल, कौशल, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। वरद ध्यान दे। तो बात ऐसी है, सक्षम के पेरेंट्स सक्षम है कि वो पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर के ऊपर केस कर सके, मीन्स दे कैन स्यू पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आता है। मैंने क्या कहा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक ही है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक ही है। तो जब केस किया जाता है, केस होगा, इनको केस किस पे करना है? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। लेकिन जब वो स्यू करेंगे, जब वो केस करेंगे, द केस विल बी फाइल्ड इन इंडिविजुअल नेम ऑफ वट्टमवार, नॉट इन नेम ऑफ पद्मिनी किराना जनरल स्टोर। केस जो है किसके नाम पे होगी? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। केस किसके नाम पे होगी? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर के नाम पे होगी। लेकिन केस किसके नाम पे फाइल की जाएगी? वट्टमवार के नाम पे, सोल ट्रेडर के पर्सनल नाम पे। दुकान के नाम पे हो रहा है क्या? नहीं। दुकान के नाम पे हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक है। सब इस केस में क्या है? द बिजनेस इज बीइंग स्यूड इन द नेम ऑफ सोल ट्रेडर। द बिजनेस इज बीइंग स्यूड इन द नेम ऑफ द सोल ट्रेडर। समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सक्षम के पेरेंट्स केस कर सकते हैं क्या? हाँ। उनको केस किस पे करना है? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर। लेकिन बात ऐसा है कि केस पद्मिनी किराना जनरल स्टोर के नाम पे नहीं हो सकता, केस होगा वट्टमवार के पर्सनल नाम पे, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक है। सबको समझ रहा है? सबको समझ रहा है? हाँ या ना मेरे भाई? अब इसका उल्टा समझो। पद्मिनी किराना और जनरल स्टोर ने पांडे से कुछ 1 लाख रुपए का मटेरियल लिया। कितने का लिया? 1 लाख रुपए का मटेरियल लिया। जो कुछ भी जैसे कि चावल लिए, क्या लिए? चावल। अब पांडे को बोला, वो साउथ वाली है तो उनके इधर मस्त चावल मिलते हैं, तो उसको बोला कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे एक लेट से 10 टन चावल दीजिए। 10 टन चावल, पांडे ने बोला कि मैं अच्छी क्वालिटी वाले चावल 10 टन चावल आपको दूंगी, बदले में आपने मुझे 1 लाख रुपए देना। पद्मिनी के ओनर ने, वट्टमवार ने पांडे को 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन पांडे ने चावल दिए नहीं। फिर वट्टमवार बोलने लगा, क्या बोलेगा वट्टमवार? दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा नहीं, है ना। अब इसने कर दी धोखाधड़ी, पांडे ने कर दी धोखाधड़ी। पांडे ने हाथ ऊपर कर ली, बोले मेरे पास कोई चावल विवल नहीं, कुछ नहीं, तुम तुम्हारा देख लो, माझ्याकडे नाही आहे, मी नाही देणार, मी नाही बोलणार तसं मी नाही देणार, मी नाही बोलणार तसा मी नहीं देणार। अब वो उसने बोल दिया कि मैं चावल नहीं दूंगे, मेरे पास कोई चावल विवल नहीं है। अब धोखाधड़ी किसने की है? पांडे ने की है। पद्मिनी ने की है क्या? नहीं। अब बात ऐसी है, क्या पद्मिनी जनरल स्टोर वाला व्यक्ति या पद्मिनी जनरल स्टोर पांडे पे केस करना चाहेगा? यस। क्या वो केस कर सकता है? यस। उन्होंने पैसे दिए कॉन्ट्रैक्ट के बतौर, पांडे ने बोला कि मैं चावल दूंगी, लेकिन वो चावल दे रही है क्या? नहीं दे रही, बाबा जी का ठुल्लू है। तो बात ऐसा है कि अब ठुल्लू जब ये दे रही है तो वो भी ठुल्लू देगा ना, तो वो भी केस करेगा।
तो पद्मिनी किराना जनरल स्टोर को पांडे पे केस करना है, तो पांडे पे जब वो केस होगा, केस करने वाला व्यक्ति पद्मिनी किराना जनरल स्टोर नहीं होगा। पद्मिनी किराना जनरल स्टोर नहीं, इधर ध्यान दे रहे एड़े, पद्मिनी किराना जनरल स्टोर नहीं होगा, वो केस करने वाला व्यक्ति होगा वट्टमवार। Sue ought to be sued in its own name. कंसेप्ट क्या है? Sued ought to be sued in its own name. An organization is said to have separate legal entity. An organization is said to be a separate legal entity when it can sue or to be sued in its own name. अब टाइटल बदल देते हैं। अब इतनी देर अपन क्या समझ रहे हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एसेट खरीदेंगे, किसके नाम पे है? वट्टमवार के नाम पे। लोन लेंगे, किसके नाम पे है? वट्टमवार के नाम पे। केस कोई कर रहा है, किसके नाम पे है? वट्टमवार के नाम पे। धंधे में से केस किसी पे कर रहे तो भी किसके नाम पे? वट्टमवार के नाम से। हर जगह पे किसको ले रहे हैं अपन? वट्टमवार, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर एक है। यस और नो? अब नाम बदल दिया, किराना दुकान जॉइंट स्टॉक कंपनी बन चुकी है। नाम है पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। व्हाट इज द नेम? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं। दो तीन लोगों ने मिलकर ये दुकान बनाई है, वॉलेंट्री बनाई है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाम क्या है? पद्मिनी किराना एंड जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। यस और नो? मैंने क्या कहा? यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी अलग है और ओनर अलग है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसके बारे में एक छोटा सा अच्छा वीडियो डालूंगा मैं ग्रुप पे, वो वीडियो देख के आना, तो फिर तुमको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगला पॉइंट जो है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। कंपनी क्या है? अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। वो क्या होता है, वो समझने के लिए आपको मेरे जुड़वा भाई से मिलना पड़ेगा। मेरा एक जुड़वा भाई है सुरेश, आई एम ऑल्सो ट्विन। कितने लोगों को मालूम है बात? हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? क्या? हाँ सच में? हाँ वीडियो भेजता हूं तेरे को। नहीं, छोटा है मुझसे। अरे छोटा मतलब कितना? 2 मिनट छोटा है, मैं 2 मिनट बड़ा हूं उससे। लाता हूं ना, पहले एक बार वीडियो तो देख लो। क्या क्या? नहीं, मैं दिनेश, वो सुरेश। मैं दिनेश, वो सुरेश। अरे कुछ भी क्या? मैडम को पूछ जाओ, मैडम भी जुड़वा है। तुमको ये बात मालूम है कि नहीं? हाँ। तुमको क्या है ना, यकीन नहीं आता कोई चीज बोले। पांडे तू तो जानती है, मैडम जुड़वा है कि नहीं? अच्छा, कोई समझदार व्यक्ति आओ। तुम इधर आओ, तू समझदार लग रहे हो, नए हो ना, इधर आओ। अच्छा, सबसे मालदार पार्टी कौन है लड़कियों में? हाँ, समझदार है क्या? जिसका तभी माल उड़ा रही है ना। अच्छा, तुम्हारे गर्ल्स में से तुम तय करो कौन है समझदार? कौन है समझदार? अच्छा, अमृता समझदार है क्या? मैं समझदार हूं। देखो कितने दिन बुरे आगे लड़के बोला मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं। बोलना पड़ रहा है कि मैं समझदार हूं। ये दिन के आगे देखो, कोई भी ये व्यक्ति आप कौन समझदार? ये जानते हैं? ये देखो, ये तुम्हारी अनबन देख के इट इज प्रूव्ड, इट्स अ प्रूव फैक्ट कि लड़कियां समझदार नहीं होती। हरभजन समझदार व्यक्ति है। नाइस सिंपल बॉय। कम प्लीज, 1 मिनट इधर आ। ये मैडम है।
नेट नहीं चल रहा है मेरा। दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये कौन है? नाम क्या है? भक्ति। ये क्या नाम है? अवती। दिख रहे है जुड़वा? बोलो उन सबके। हाँ नहीं नहीं, वो फैमिली ग्रुप बताया ना उसको मैंने। अच्छा, शक्ति नहीं है ना, वो अवती है। अवती, अवती। हाँ, एक भक्ति एक अवती। इस जान दो, मेरा फैमिली फ्रेंड, मेरे परिवार को एकदम बचपन से राघव जानता है, उसको मालूम है। जुड़वा है कि नहीं मैडम? उसको मालूम है। राघव तो गली में रहता है ना मेरे। अबे मैं भी जुड़वा है, तू गली में कभी बड़ा नहीं हो, कभी आए नहीं थे क्या? मालूम तेरे को क्या? सुरेश पट्टी मांगने को सुरेश आता, मैं नहीं आता। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं पट्टी देता हूँ सिर्फ। बात ऐसी है, अरे सच में मैडम जुड़वा है, तुम लोग को नहीं पता। तुझे पता था ना, मैं पहले दिन ही बताया ना कि हम दोनों भी जुड़वा है, मैं भी जुड़वा, मैडम भी जुड़वा है। अरे यहाँ रहना चाहिए ना, सुरेश पुणे रहता है। अभी बिजी रहता है काम में। हाँ, एकत्व में सुरेश सिखाता है, परभनी में मैं सिखाता हूँ। अरे सच्ची में। और मैडम भी जुड़वा है। मैडम की सिस्टर रहती है इचलकरंजी और मैडम रहते हैं यहाँ पर। अवती रहती है इचलकरंजी और मैडम यहाँ पर है। हाँ तो अरे तुमको कल वीडियो भेजता हूँ ना, एकदम मेरे जैसा पड़ा, एकदम हूबहू जुड़वा के जैसे। अरे दिखाऊंगा ना, दम करो, सब्र का फल मीठा होता है। दिवाली में आएंगे, दिवाली में आएंगे बस। यस, डन डन। दिवाली को जब आएंगे ना, जब सुरेश दिवाली को आएगा तब मिलाऊंगा। तुम लोग को अभी यकीन नहीं हो रहा ना? सिर्फ अरे ठहरना यार, वीडियो दिखा रहा ना पूरा, फोटो क्या लगेंगे? वीडियो दिखा रहा, फोटो तो भी जैसे वो बोला कि एक डबल डबल क्रॉप कर सकती, लेकिन वीडियो क्रॉप नहीं होता। अरे एक मिनट, मैं यहाँ पे खड़ा हूं बरोबर, तो मेरे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तभी वर्चुअल में दो लोग लगाएंगे ना। तो सुन, अरे नहीं सुन मेरी बात सुन। आपको जो लेक्चर आएगा ना, वो लेक्चर जो उसके अंदर ये आर्टिफिशियल पर्सन समझाने के लिए मैंने बोला कि सुरेश हम दोनों मिलकर ये पॉइंट समझाएंगे, तो वो लेक्चर को हम दोनों ने मिलकर समझाया वाला है। तो अगला पॉइंट जो है, हाँ तुमको यकीन नहीं आ रहा ना, अब लेक्चर में तो उड़ा के नहीं ला सकता मैं। कैसे? अरे लेकिन साथ में खड़े रहे तो लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना पागल। किसका किसका किसका? वो क्या रहता है वो मुझे नहीं पता, अपन यूट्यूब नहीं देखते। सुनो मेरी बात, पिछले साल सुरेश यहाँ आए थे, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के दौरान मैं और सुरेश यहाँ खड़े रहकर हमने पॉइंट ऐसे ही लिया था। और आर्टिफिशियल पर्सन जो है, हाँ पूछ, थोड़ी देर से मम्मी को पूछे ना, माँ तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो भाई मेरा छोटा भाई है सुरेश, जो मेरा जुड़वा भाई है, हम तीन भाई है, दिनेश सुरेश नीलेश, ऐसा। हाँ तो तीन ना, हाँ तो मैं और सुरेश। अरे तुम लेक्चर देख लेना बस, अभी नहीं बाद में। अच्छा कंप्लीट तो होने में मेरे को पहले पॉइंट, ये पॉइंट तो कंप्लीट होने में। अभी एक मिनट मैडम आए, अभी नहीं आए, मतलब आएंगे। सुनो, अब बात ऐसी है कि अभी बात ऐसी है, नाम अपन ने बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। नाउ अंडरस्टैंड प्लीज, तेजस डुबेवार सब लोग ध्यान दो। अगर आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या। पद्मिनी किराना जनरल स्टोर और सोल ट्रेडर वन है, लेकिन पद्मिनी किराना जनरल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड हो गया तो वो अलग हो गया, वट्टमवार अलग हो गया। वट्टमवार इज द शेयर होल्डर, ही इज द ओनर।
जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सेम इंस्टेंस, सेम एग्जांपल, अलग क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। दुकान खरीदी जा रही है, लेकिन अब दुकान होगी इन द नेम ऑफ पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। लोन लिया जा रहा है, लेकिन लोन के ऊपर नाम क्या होगा? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। सक्षम के पेरेंट्स केस कर रहे हैं, केस के अंदर जिसके ऊपर केस किया जा रहा है वो नाम होगा पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। पांडे पे केस किया जा रहा है, यहां पर नाम होगा पद्मिनी किराना, केस करने वाले का नाम क्या होगा? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी पूरे व्यवहारों में अब वट्टमवार का कोई भी लेना देना नहीं है। क्या नहीं? यानी ओनरशिप इज डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी is a separate legal entity which can sue in its own name, which can be sued in its own name, which can hold the assets in its own name, which can incur the liability in its own name। सबको समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझा क्या? जहां सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, दुकान लिया किसके नाम पे? वट्टमवार के नाम पे। लोन लिया किसके नाम पे? वट्टमवार के नाम पे। केस सक्षम के पेरेंट्स ने किसके नाम पे किया? वट्टमवार पे। पांडे पे किसने किया? वट्टमवार। लेकिन जैसे ही वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। दुकान का मालिक कौन है? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। वट्टमवार फिर मालिक नहीं रहता। मालिक कौन बन जाता है? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। लोन जो लिया जाता है उसकी लाइबिलिटी पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड की होगी। यानी कल को वो 10 लाख डूब गए, कुछ भी करे, उसके लिए वट्टमवार रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। असेट और लाइबिलिटीज विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी विल बी sued एंड कंपनी कैन sue इन इट्स ओन नेम। सक्षम के पेरेंट्स वट्टमवार के ऊपर केस नहीं कर सकते डायरेक्ट। केस किसके नाम पे होगा? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। आर गेटिंग माय पॉइंट? आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। पांडे के ऊपर डायरेक्ट केस वट्टमवार नहीं कर सकता। पांडे के ऊपर केस कौन करेगा? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज हाउ द जॉइंट स्टॉक कंपनी has a separate legal entity। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पार्टनरशिप फर्म में, इधर ध्यान दो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, पार्टनरशिप फर्म में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, क्या इन तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताई थी मैंने? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर की टाइप लाइबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। इन तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर और फर्म एक ही है। समझ में आ रहा है? ओनर और फर्म एक ही है। यानी पार्टनरशिप फर्म में भी अगर कोई असेट लिया तो पार्टनर्स के नाम पे लिया जाएगा, कोई लाइबिलिटी होगी वो भी पार्टनर्स के नाम पे होगी, केस भी होगा वो पार्टनर्स के नाम पे होगा, केस जो भी किया जाएगा वो पार्टनर के नाम पे किया जाएगा। वैसे ही जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में अगर कोई एसेट लिया तो कर्ता के नाम पे होगा, लाइबिलिटी ली जाएगी तो वो कर्ता के नाम पे होगी, केस अगर किया जाएगा तो कर्ता के नाम पे केस किया जाएगा, और जब केस करेंगे तो कर्ता करेगा। सब जगह पे ओनरशिप एंड बिजनेस इज वन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर ओनर और फर्म एक ही है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में देयर इज सेपरेशन ऑफ लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग है, ओनर अलग है। इसलिए दुकान किसके नाम पे? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। लाइबिलिटी किसके नाम पे? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर लाइबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। सक्षम की केस किसके नाम पे? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। केस कौन कर रहा है? पद्मिनी किराना जनरल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। ओनर का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है? A joint stock company is a separate legal entity that enjoys separate legal status. Its existence is different from its members and directors. The members are the owners and are liable in limited way for the acts of their company and are conferred with the rights and duties. अब समझ लो, जियो कंपनी में तुमने 5,000 रुपए के शेयर्स लिए। कितने के शेयर्स लिए? 5,000 रुपए के लिए। अब जियो कंपनी के शेयर लेते तुम क्या बन गए? शेयर होल्डर। मैंने क्या सिखाया? शेयर होल्डर इज द ओनर। शेयर होल्डर इज द ओनर, हाँ या ना? नीचे जियो का ऑफिस है, लेट से मैनेजर में और एक कस्टमर में फुल बोचा बचे हो गए, झगड़े हो गए, मारामारी हो गई। जैसे कि सुबह हुए, एक ने छुट्टी भर दी, उसने छुट्टी भर दी, है ना, उसने तुझ बोला, उसने 100 नहीं दिए, इसने 100 नहीं दिए, क्या ही कर रहे हो? ऐसे झगड़े हो गए नीचे मैनेजर में उसमें।
और जो कस्टमर आया आपको बोला कि मैं तुम्हारे नाम पे केस करने वाला हूं, अब उसने केस कर दिया है जियो के नाम पे, तुमने शेयर दिए तो तुम क्या बन गए? ओनर। सब मतलब झगड़े कर रहे ये लोग, तुम शेयर होल्डर हो, तुमने शेयर खरीदे, तुम रहते हो दिल्ली में, केस तुम्हारे नाम पे होगा, किस लिए? तो तुम्हारे कंपनी के किसी व्यक्ति ने यहां झगड़े किए। कोई सेंस बनता है? नहीं। कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कुछ भी होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, जो कुछ भी होगा वो कंपनी के नाम पे होगा। पहला पॉइंट वॉलेंट्री एसोसिएशन, सेकंड पॉइंट रजिस्टर्ड, तीसरा पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर्स अलग है, ओनर का और कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ जितने उन्होंने शेयर्स लिए उतने ही लायबिलिटी के लिए वो लायबल है। कल को करोड़ों में भी बिजनेस नुकसान में जाता है तो उसके लिए ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। आपने 5,000 के शेयर्स लिए, शेयर्स 5,000 के शेयर्स लिए और कंपनी को लग गया 100 करोड़ का नुकसान, अब 100 करोड़ तुम भर दो, ये क्या बात हुई भाई? शेयर्स लिए 5,000 के, नुकसान भरने का 100 करोड़, ये कौन सी बात हुई? सही है क्या? नहीं। इसीलिए लाइबिलिटी भी जो यहां पर है वो लिमिटेड है, लाइबिलिटी जो भी है वो कैसी है? लिमिटेड। इज एवरीवन क्लियर? क्लियर है पहले तीनों पॉइंट? आर्टिफिशियल पर्सन का पॉइंट मैं और सुरेश जो मिलकर लेक्चर लिए उसकी लिंक मैं आपके ग्रुप पे डालता हूं। थैंक यू। बाकी किसी को लग रहा है सुरेश नहीं है तो मैं उसको दिवाली में मिलाऊंगा फॉर श्योर।